Hello and welcome to this special presentation right here on NDTV. You see, now before the 2024 mega electoral contest, there were supposed to be 9 smaller contests but equally important in the year 2023. Some have happened, but 5 more are left. And of these 5, there are 3 very significant. One is Chhattisgarh, the other is Madhya Pradesh, and the third is Rajasthan, where we are right now. As of this moment, as you can see, this is the residence of the Chief Minister, Ashok Gehlot. Now, Rajasthan follows a tradition, a sort of a cyclical nature of politics. 5 years to BJP, 5 years to Congress, and this has been going on for about 3 decades, more than 3 decades. Can Ashok Gehlot buck this trend? And how exactly does he propose to do this? That too at a time when he's facing a big rebellion in his own party and a huge problem that he has continued to face since 2020, the rebellion of Sachin Pilot. He's also all set to form his own political formation or break away perhaps from the Congress party. Ashok Gehlot has stayed on, but with the cyclical nature of Rajasthan, big challenge from the BJP, and now the breakaway group perhaps of Sachin Pilot. Is Ashok Gehlot's big bet on social welfare schemes? Is that the Ashok Gehlot punt for Rajasthan 2023? He has launched a whole host of social welfare schemes. We are going to visit some of these sites where these camps are being organized. His government claims that in a state that has a population of about 8 crore people, more than 6.8 crore guarantee cards to the Labharthis or the beneficiaries have already been issued. So can this be a game changer for Ashok Gehlot, or will it be game over? We're going to spend a whole day with the Chief Minister, ask him a lot of questions. Most importantly, who's going to fund all this? It's all nice to promise something and give guarantee cards. Where will the money come from? This is not an endless pit. All this and much more in this exclusive conversation. Stay with us. कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया. Camps that Ashok Gehlot and his government have organized. This one is in Sikar, where we have visited. Now obviously the price rise relief camp has been converted into a political rally as well. Elections are drawing nigh, and that is why this is something that we'll see happening more and more frequently. You can see that a large number of beneficiaries, including women, as the state government claims, more than 6.8 crore guarantee cards have been issued, and 1.5 crore families have registered for this Mehengai camp. How much of this is going to convert into votes, because this comes so close to an election in Rajasthan, and can that help Ashok Gehlot buck that trend of governments not repeating and there being a different government, particularly for the past 3 decades between Vasundhara Raje and Ashok Gehlot? So can he buck that trend? That is going to be very significant. He's on the stage right now. In just a short moment, we'll hear the Chief Minister, Ashok Gehlot, who's there on the stage, along with other members of his cabinet, what he's essentially going to say. And can price rise or his war against price rise actually help him electorally? We'll find out by speaking to a lot of beneficiaries also who have gathered. राजस्थान में जो महंगाई राहत कैंप लगे हुए हैं, वैसा ही एक कैंप है ये सीकर में। लेकिन ये काम कैसे करता है? ये अलग अलग
स्कीम्स हैं जैसे कि सिलेंडर 500 रुपए में, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख, दुर्घटना बीमा 10 लाख, 100 यूनिट बिजली, किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट बिजली, पेंशन 1000 रुपये हो गई, पहले 500 थी, फ्री राशन स्कीम, कामधेनु पशु बीमा योजना, मनरेगा गांव में और मनरेगा शहर में, ये सारी स्कीम्स हैं। लेकिन इसको आप इसका लाभ लेंगे कैसे, आप लाभार्थी कैसे बनेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, आइए वो जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी कैंप के अंदर हम जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? गजेंद्र कुमार। ये बताइए कि ये आप प्रोसेस जो है ये क्या है, कोई यहाँ पर अगर आएगा लाभार्थी है, कोई ये स्कीम का फायदा उठाना चाहता है या लेना चाहता है, तो उसको आप किस तरीके से सहयोग करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम उससे जो ज़रूरी दस्तावेज हैं कि वो किन किन योजनाओं में पात्रता रखता है, वो सभी दस्तावेज उनसे लेते हैं। जैसे जन आधार है, सबसे मैंडेटरी है। उसके बाद बिजली बिल है, नरेगा जॉब कार्ड है, और उज्ज्वला योजना में यदि उन्होंने कनेक्शन ले रखा है तो उसकी डायरी। उसके बाद सबसे पहले हम पोर्टल पर जो नया पंजीकरण का ऑप्शन है, तो ये पोर्टल है, इसमें नया पंजीकरण है, इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो अपने जो नीचे स्कीम्स हैं वो स्कीम्स खुल जाएंगी। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर हम जन आधार का नंबर डालेंगे। जन आधार मतलब स्टेट का आधार, स्टेट गवर्नमेंट ने जो आधार डेवलप किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, उस जन आधार नंबर अपन यहाँ पर डालेंगे तो नीचे जो स्कीम्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। उन स्कीम्स में वो कौन कौन सी स्कीम में पात्र है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें से 4 स्कीम ऐसी हैं वो तो जन आधार सीधे डेटा ले लेता है। जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना और अन्नपूर्णा राशन, और साथ में एक पेंशन योजना है। ये 4 स्कीम्स तो जन आधार सीधे ले लेता है। उसके बाद शेष जो 6 स्कीम है उनमें हम, जैसे मान लीजिए कि नरेगा जॉब कार्ड है, तो नरेगा जॉब कार्ड का नंबर हम उसमें डालेंगे, तब वो उसका डेटा लेगा। ऐसे ही अगर उज्ज्वला योजना में उन्होंने कनेक्शन ले रखा है तो उज्ज्वला योजना की उनकी जो डायरी है, उस डायरी का जो कस्टमर नंबर है वो डालना होता है, यहाँ पर। ऐसे ही अपन विद्युत योजना में अगर करते हैं तो उपभोक्ता का जो बिजली बिल है उसका के नंबर, जो कस्टमर नंबर है, वो इसमें डालना होता है। तो इसके बाद अपन एक आती है कामधेनु बीमा योजना, उसमें कामधेनु बीमा योजना में हम, अच्छा ये मैं देख रहा हूँ S1, S2, S3 मतलब ये वो 10 योजनाएं हैं। ये 10 योजना, और इसमें ये जैसे जो बाबूलाल जी हैं, ये S1 पहली योजना इन पर लागू नहीं है, दूसरी है, 8वीं है, इसका ये मतलब हुआ? जी सर। यहाँ पर सामने स्क्रीन पे दिखता रहेगा कि वो कौन सी योजना में पात्र है। जिस योजना में होगा तो वो प्रिंट लेने से पहले यहाँ पर टिक मार्क दिख जाएगा ग्रीन में। कुछ लाभार्थियों से भी बात करते हैं जो बेनिफिशरीज हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजकुमारी जी है सर। आपने पंजीकरण करवा लिया? कौन सी स्कीम में? स्कीम 5 स्कीम है हमारी। नहीं, इसमें से कौन सी? इसमें से सिलेंडर नहीं है सर। तो मनरेगा वाली है, गांव वाली है। हाँ, गाँव वाली, ग्रामीण क्षेत्र। एक वो स्वास्थ्य बीमा 25 लाख वाली, 25 लाख वाली, एक 10 लाख वाली, वो 200 यूनिट फ्री वाली, और एक पशु वाली। 5 लाभ है सर। वो 5 लाभों में से वो चिरंजीवी योजना वाला, मेरे आदमी की लीवर खराब हो गई थी, तो 1,68,000 रुपये में फ्री इलाज हुआ। टॉक्स हॉस्पिटल में 1 रुपया भी नहीं लगा। नरेगा में जाती हूँ, नरेगा में काम करती हूँ, नरेगा में काम कर करके बेटा को नौकरी लगा लिया। अच्छा काम किया है। 200 यूनिट फ्री मिल ही रही है, बिजली का बिल ही नहीं आ रहा है। अच्छा, खूब लाभ मिला है सर हमारे को। तो आपको लग रहा है कि इससे फर्क पड़ रहा है? एक सवाल ये है कि ये तो अभी शुरू हुआ है, थोड़ा पहले हो जाता तो और पहले राहत मिल जाती। और भी राहत मिल जाती सर, बढ़िया लाभ मिला है। अभी भी, पहले भी हम तो नरेगा में काम करते थे, काम कर करके अच्छा काम किया है सर। आपका शुभ नाम? संगीता चौधरी। संगीता चौधरी। संगीता जी, आप कौन कौन से इसमें से स्कीम आपने? मेरे पास एक सिलेंडर है, एक ये है, और एक चिरंजीवी ये है, एक ये है, एक ये है, और एक कामधेनु पशु बीमा। इसमें से सबसे आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी स्कीम करती है? सिलेंडर। सिलेंडर। और ये कैसे होता है? 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद के और फिर 500 रुपए 20 का 500 में मिल रहा है। लेडीजों के लिए तो यही सबसे बढ़िया है।
लेकिन यही सवाल यही है ना कि अब मिलना शुरू हुआ है, अगर पहले मिलता तो और भी फायदा होता। तो अब एक बड़ी बात यह है कि देखिए चुनाव के करीब ये सब हो रहा है, तो आपको लगता है राजनीतिक लाभ होगा इससे या फायदा होगा? लाभ तो मिलेगा, अगर सरकार ने कुछ किया है तो उसका लाभ तो मिलेगा। हमारे बीच में आपके गली मोहल्ले में क्या इसके बारे में बात होती है? हाँ सर, सब लोग लेडीज एकत्रित होती है ना, तो इनके बारे में बात करती है कि वोट अशोक जी को, गहलोत जी को देंगे, उनको जिताएंगे, पता नहीं और आगे क्या योजना निकाले वगैरह वगैरह। लेडीजों के पास तो बस यही है लाभ। आपके क्षेत्रीय विधायक पर ये भी तो देखिए कि दूसरी तरफ राजस्थान में ऐसे होता है ना, 5 साल गहलोत जी, 5 साल वसुंधरा राजे। सर ये सब हमें कंपटीशन नहीं होता है, उनमें आपस में होता है। अच्छा काम कराएंगे उसको वोट देंगे ना, हमारे को तो अच्छा लाभ मिला है इसमें तो। जो भी सरकार लाभ देगी उसी को वोट देंगे हम तो अपना। आप किसको वोट देते हैं? कांग्रेस? हालांकि ऐसे पूछना नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन फिर भी कांग्रेस में देते हैं हम, कांग्रेस में। तो फिर तो आपका तो क्लियर है। क्लियर है। हमारा तो कोई आना जाना है नहीं। आपने परमानेंटली है हमारा। परमानेंटली है। हाँ। परमानेंटली है। तो फिर आपका तो थोड़ा बायस हो गया हिसाब, ये एक तरफा हो गया। अब आप कुछ भी समझो। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अलग अलग योजनाएं जो हैं उसमें एक स्कूटी वितरण भी एक योजना है। एक लाभार्थी यहाँ पर हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? शकुंतला सोनी। आप यहीं की हैं, सीकर की? हाँ सर। अच्छा, तो ये जो स्कूटी है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि ये इसमें और पहिए लगे हुए हैं, तो आपको किस किस्म की दिक्कत आ रही थी और आपको कैसे ये लाभान्वित करेगी? सर मैं पार्लर चलाती हूँ और 15 किलोमीटर मुझे पैदल चल के जाना पड़ता था, तो इससे अब मुझे फायदा हो जाएगा, मुझे दिक्कत नहीं होगी जाने आने में। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आप सीकर में लगाते हो, खंडेला सीकर में ही रहेगा, निश्चित रहो। तो 3 पब्लिक मीटिंग्स में से एक मीटिंग खत्म हो गई है, ये सीकर में है। मुख्यमंत्री ने अभी अभी अपनी मीटिंग खत्म की। अशोक गहलोत जी, ये महंगाई राहत कैंप, उसमें आप कैंप में गए, वहां पर हमने देखा, यहाँ पर जिले में बता रहे हैं सीकर में 85% ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपका इंप्रेशन क्या रहा इस सभा के बाद? नहीं, जितना हम उम्मीद करते थे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, इसीलिए करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा परिवार जुड़ गए। 6.5 लाख कार्ड बढ़ चुके हैं अभी तक भी, जबकि अभी तक तो पूरा महीना बाकी पड़ा है। जून का 30 जून तक का प्रोग्राम था ये, तो पहले ही करीब करीब पूरा हो जाएगा, इतना रिस्पॉन्स इसका है। गांव गांव में बात फैल गई है, भाई ये रात कैंप पे जाना चाहिए हमें, सुनिश्चित हो जाएगा उनको बेनिफिट। और ये तमाम स्कीम हमारी परमानेंट है, ये मतलब कंसिस्टेंट रहेगी, आगे भी रहेगी। नहीं, एक लोगों के मन में, यहाँ कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, उनके मन में ये था कि अभी तो आपने कर दिया, फर्ज कीजिए दिसंबर के चुनाव में कांग्रेस की सरकार अगर नहीं आती है, कोई और आता है, वो कोई और कानून बदल देता है, तब क्या होगा? और एक बात ये भी कही जा रही थी कि अशोक जी पहले ही कर देते, 4.5 साल बाद क्यों किया? फायदा हो रहा है, लेकिन थोड़ा पहले कर देते। पहले किया ना, पहले मैंने दवाएं फ्री करी, स्टेट वाइज किया है। पहले दवाएं फ्री करी, पहले 50 यूनिट करी बेटी, अब 100 यूनिट करी है। हर चीज़ का एक साथ तो कर नहीं सकते ना, तो हर बार स्कीम बनाई हमने, कोई न कोई स्कीम बनाई है उनके लिए, उसी रूप में हम स्कीम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, 4 मुद्दे थे उनकी यात्रा में। महंगाई का था, बेरोजगारी का था, नॉन वायलेंस का था, और गरीब अमीर में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। इस बार जो फोकस हो रहा है, इसलिए हो रहा फोकस। आप देखिए सारे लोग यहाँ पर, ये सीकर की वो जो सभा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें, राकेश आपको दिखाएंगे पूरा सभा स्थल। अशोक गहलोत जी यहाँ के लोगों को सभा के बाद अलविदा कहते हुए। जी अशोक, ये हमने जो है सोच समझ के ये स्कीम बनाई, जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच जाए। वरना क्या होता है, 60-70% तक लाभ पहुंचता है। लोग कई लापरवाही कर देते हैं, कई बार बीमा करवाते नहीं हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, 2 बच्चे मर गए एक साथ में। एक बच्चे के परिवार ने कार्ड ले रखा था,
ने नहीं लिया। चिरंजीव का, उनको 5 लाख मिल गए। दूसरे बच्चे के परिवार ने लिया नहीं गलती से, उनको नहीं मिले पैसे। तो ये जो है हम चाहते हैं कि सुनिश्चित करें हर परिवार तक हमारी योजना पहुंच जाए, उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ जो कि आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने भी पूछा है कि ये स्कीम बढ़ा करके इतना वो उतना सिलेंडर 1000 की जगह 500 का, बीमा जो है वो बढ़ा करके 25 लाख और दुर्घटना वाला 10 लाख, ये सारी चीज़ों के लिए पैसे भी लगते हैं। तो राजकीय कोष जो है उसमें इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये प्रावधान कहीं ऐसा तो नहीं है आप घोषणा कर रहे हैं लेकिन उसकी भरपाई कैसे होगी? आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है इकोनॉमिस्ट का, मैं आपको भेज दूंगा। उसके उन्होंने कहा है कि राजस्थान की फाइनेंशियल स्थिति इस प्रकार की है वो अफोर्ड कर सकते हैं। हमने देखिए ये लोगों को भ्रम है, हर सरकार के वित्तीय प्रबंधन अपना खुद का होता है, राज्य का विषय है ये। केंद्र सरकार की बगैर परमिशन के हम 1 लाख रुपए भी लोन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, लोन हर सरकार को लेने पड़ते हैं। भारत सरकार को लेना पड़ता है। 55 लाख करोड़ का कर्जा था जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा सरकार, और वो 1 करोड़ 55 लाख का कर्जा हो गया है। 55 लाख से 1 करोड़ 55 लाख का कर्जा हो गया है। तो ये तो जो है कर्जे बढ़ते हैं सरकारों पर साथ में वित्तीय प्रबंधन इस प्रकार का होता है जिसमें जो है आप समझ लीजिए कि फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट कितना आपका है, रेवेन्यू रिसीट कितनी है, ये तमाम पैरामीटर बनाए हुए हैं। FRBM कहलाता है, 2005 में बना था वो एक्ट। उसके एक्ट के अंतर्गत ही कर्जा ले सकता कोई, और बिना भारत सरकार की परमिशन से कोई राज्य सरकारें कर्जा ले नहीं सकती। तो इस पैमाने पर आपका ये मानना है कि राजस्थान में इतना पैसा है कि आप इस तरीके की स्कीम चला सकते हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार परमिशन तभी देती है कर्जा लेने की, तब वो पैरामीटर बिल्कुल ठीक हो, तभी हम ले पाते हैं। दूसरा, अभी राजस्थान के जो फिगर आए भारत सरकार के पिछली बार, उसमें राजस्थान आर्थिक विकास के अंदर नंबर 2 पे देश के अंदर। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, GDP 11.4% जो रेशियो जो आधार है, और हमारे यहाँ 11.04%। तो आज राजस्थान आर्थिक विकास में भी नंबर 2 पे है राजस्थान के अंदर। 5 साल में हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है, बिना टैक्स लगाए हुए वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं हम लोग, शानदार। अब उसमें प्रधानमंत्री जी जब रेवड़ी बढ़ती है उनके राज्यों में, उनको नाम रेवड़ी दे दो, कुछ दे दो, तो ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है जहाँ पर इसी तरीके का एक महंगाई राहत कैंप लगा है। एज यू कैन सी सब लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग इस कैंप में आ भी रहे हैं अपना पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जैसे कि ये महिलाएं आई हैं तो ये पूरा प्रक्रिया होगी, जैसे कि अभी आपको राकेश दिखाएंगे। आपने अपना जन आधार कार्ड, इन्होंने कौन सा कार्ड दिया है अपना? जन आधार दिया सर। जन आधार कार्ड, और उसके बाद आप इसमें फीड कर देंगे। नंबर डालेंगे, पूरी फैमिली की क्या है सर वो आ जाएगी, पूरी फैमिली का डेटा आ जाता है। और उसमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी स्कीम के लिए ये लागू है। हाँ? हाँ। आपको स्कीमों के बारे में पता है तो फिर ये आपको बताएंगे कि कौन सी स्कीम है। अच्छा, फोन आया था, बोले आपका जन आधार कार्ड लिंक करवाओ। अच्छा। तो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मिलेगा। इनको रजिस्ट्रेशन के बाद एक प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो अभी निकलेगा वो, तो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सुनीता देवी। सुनीता देवी ने अपना राजस्थान सरकार द्वारा दिया हुआ जन आधार कार्ड दिया है, जिससे ये पता चलेगा कि वो किस किस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो अभी ये कंप्यूटर में ये प्रक्रिया हो रही है, फिर एक स्लिप निकलेगी जिसमें पता चलेगा कि इनको क्या क्या
लाभ मिल सकते हैं? 750 या 500 रुपए किसी की नहीं आती। कितने रुपए आती है? 750 750। क्या नाम है अपने सासू का? गुरनेश देवी। गुरनेश देवी। इसमें तो नहीं है, इस जनाधार में थोड़ी है उनका नाम। पहली जुड़ू वाली। और तो नहीं है ना, इस जनाधार में किसी की पेंशन नहीं आती ना। आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक किए? डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या चेक किए? डॉक्यूमेंट इसके अंदर एक तो बिजली का बिल आता है अपना, और जिनके उज्ज्वला की अगर गैस डायरी है तो उनके ये फ्री वाला जो 1100 रुपये का 500 रुपये तो जैसे इन्होंने क्या दिया? अपना जन आधार कार्ड और कार्ड और बिजली का बिल। अच्छा, फ्री राशन मिलता है, उस योजना लागू है ये योजना इनका। उसके अलावा चिरंजीवी में भी आ रहा है इनका, दुर्घटना बीमा में भी आ रहा है इनका। तो 10 में से कितनी स्कीम में आ रहा है? ये 10 में से अभी ये 4 योजना है इनके पास। 4 योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है, ऐसा ये बता रहे हैं। कौन सी योजना का लाभ मिलेगा? हैं? वो कौन सी योजना है जो वो आपको बताएंगे। ये कुछ पूछ रही हैं आप? अभी आपको पूरा प्रिंट आउट निकाल के देंगे हम। ये अभी पेज निकाल के देंगे आपको। आपका शुभ नाम क्या है? रेखा देवी। आप भी इन्हीं के साथ हैं? दिल्ली वाले ने आपकी ने मतलब रजिस्टर्ड करवा दिया है। तो गाय भैंस है आपके? कोई गाय भैंस है क्या? गाय भैंस है क्या? गाय भैंस है क्या आपको? नहीं। 3 योजना मारे सर ये। तो अभी यहाँ पर जो दोनों महिलाएं आई हैं उनको पता चला है कि वो 10 में से 3 योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। कौन कौन सी 3 योजनाएं हैं? सर एक तो फ्री राशन, दूसरा इनका चिरंजीवी बीमा है, तीसरी इनकी दुर्घटना बीमा योजना। 3 योजना इनको मिल रही है सर। तो चिरंजीवी बीमा, दुर्घटना बीमा और फ्री राशन, ये 3 चीजें। अच्छा, प्रिंट आउट निकाल के देंगे। नाम आ जाएगा, तीनों जो योजना इनको लागू हुई है उनका नाम आ जाएगा उसमें। उनको भी तो रोजगार मिलना चाहिए ना। जो बेरोजगार है उनको तो रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये आपका कार्ड है। हाँ। इसमें आपको मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिल रहा है आपको। उसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, तीनों योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है। सिलेंडर की तो बोल रही, सिलेंडर कौन से में मरेगा? आपके पास में पहले से है क्या उज्ज्वला वाला? यस, ये मिला है हमारे को मुख्यमंत्री की तरफ से। आपके पास पासबुक है हमारे हाँ। लेके नहीं आया, पासबुक लेके आओ, हो जाएगा रजिस्टर। तो इनको एक और लाभ मिल जाएगा। क्या करना है इनको? तो इनकी जो उज्ज्वला वाली पासबुक है ना गैस की सर, वो लेके आनी पड़ेगी। अच्छा, अगर हम उसका रजिस्टर कर देंगे तो उनको वो 500 रुपये। फिर गैस भी 500 में मिलेगी। इनका गारंटी कार्ड बनेगा यहाँ से। क्या गारंटी कार्ड बना के देंगे यहाँ से? अच्छा, जो ये 3 योजना लागू हुई है उनका गारंटी कार्ड बना के देंगे यहाँ से। इनका सवाल ये है कि इनको जो फ्री में सिलेंडर मिला है वही 500 में भरेंगे या फिर नया सिलेंडर लेना पड़ेगा? ये सर क्या कल भी कैंप होगा यहाँ पे? कल वो पासबुक ले आएंगे तो हम उसको रजिस्टर कर देंगे कल। तो जो इनके पास पहले से सिलेंडर है वही 500 रुपए में हो जाएगा। बिल्कुल सर, अगर इनके पास में पहले से उज्ज्वला वाला सिलेंडर है ना तो 500 रुपये में हो जाएगा इनका। या हमारा कहना ये मतलब है कि फ्री में जो मिला हुआ वो भी भरेगा, या हम केस में खरीदे वो भी मिलेगा फ्री में 500 में। ये क्या पूछ रही हैं? जो हम मुख्यमंत्री की तरफ से फ्री में नहीं मिला सिलेंडर, वैसे हम केस में खरीदे तो वो 500 में मिलेगा या 1100? वो नहीं होगा, अगर पहले से आपको फ्री में उज्ज्वला वाला मिला हुआ है। जिसको नहीं मिला हुआ वो नहीं, तो उनके लिए नहीं है ये कार्ड बन गया आपका। सिरिंजी का हो गया, इसमें 3 अलग अलग गारंटी कार्ड है। ये फ्री राशन का हो गया, ये सिरिंजी योजना दोनों 25 लाख और 10 लाख दुर्घटना बड़ी। इस कार्ड में हर चीज की जानकारी है। और इसके पीछे है ना ये लेबल लगा है ना, इसका ये लेबल लगा इनके नाम से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा तो इस योजना में क्या क्या है वो लिखा है पीछे। इसके पीछे लिखा हुआ है सब। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो वो पढ़ सकता है। मन में कोई सवाल है इस चीज को लेकर के कि अब आगे क्या होगा? हम बेरोजगारों के लिए ये सोचते हैं कि बच्चे हैं तो लड़कियां हैं तो उनके पास धंधा नहीं है तो उनके लिए भी कुछ वो होना, सुविधा होनी चाहिए ना। इनका रोजगार के लिए मनरेगा वाला जो है स्कीम, उसमें ये लागू नहीं है।
ये नरेगा का जॉब कार्ड लेके नहीं आए सर। 1000 रुपए की पेंशन कब से होएगी? 1000 रुपए की पेंशन कब से होएगी? 750 रुपए मिलते हैं, विधवा है तो उसको 1000 रुपए नहीं मिल रहे। आप ये सब पूछती क्यों नहीं है? बहुत सारे सवाल है इनके पास। इनकी सास को 750 रुपए पेंशन मिलती है, 1000 नहीं मिल रही। नहीं सर, अभी वो रजिस्टर्ड करवा दी होगी तो अब क्या 1000 रुपए हो जाएगी 750 की। करवा दिया, मैंने भी करवा दिया था। कैंप चालू हुआ तब से हाई सेकेंडरी स्कूल में कैंप चल रहा है, उसमें करवा दिया था। अब हो जाएगी सर, वैसे लागू हो जाएगी अगर वो उनके जनाधार में उनका नाम है, उससे अगर वो रजिस्टर करवाई होगी ना। उनका जनाधार लेकर के आई है, ऐसा इनका कहना है। हम 1 महीने पहले जुड़वा चुके हैं कैंप के अंदर। हाई सेकेंडरी में कैंप लगा था तो उसमें जुड़वा दिए थे, फिर भी नहीं मिल रही उनको। कुछ दिक्कतें हैं। वो सर देखो, हो सकता है नेक्स्ट मंथ से जो आने वाला नया मंथ है उसमें जो पेंशन आएगी वो टाइम लग जाता है, अपडेट होने में टाइम लग जाता है उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़कियां हैं उनके लिए थोड़ा बहुत होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बच्चे हैं, कुछ रोजगार है नहीं तो इनके लिए कुछ तो होना चाहिए। नहीं ये बोल रहे थे। What is your name? Myself Aryan. Myself Aryan. Which class are you from? I am from 10th class 10th. Okay, and where? from Mahatma Gandhi English Medium Government School. Okay, this is in Junjunu. Yes. Babai. Huh? This is in Babai. Okay. And what do you think about your school? I am thinking that it is beneficial for all students and you can get all benefits. What about you? Your name? My name is Kushal Sharma. My name is Kushal Sharma. Kushal Sharma. Which class are you in? 10th. You're also in 10th. And you're from the same school. Yes, sir. When did you join this school? I joined this school in 7th class. In 7th. So it's been what, 3 years? Yes, sir. And you like it? I like it very well education in this school I get from my teachers and very supportive my principals are. And this school teacher teaches with like a friend and very well education which has been given to state government. Thank you. What about you? I'm Sumiti Sharma. I'm studying in 10th class in Mahatma Gandhi Government School Babai. I think that this is very good school. The poor family which cannot afford private English medium school can easily take admission and get studied and get education in English medium. So it's a very good school. I like it and I think that this is the most affordable school for the poorest people. Thank you. Thank you so much.